Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, Siddharth. Yes, Kia Reddy. Good morning. Riddhi Good morning, Jungare. sir. Riddhi Good morning, sir. Karthike. Karthike. Good morning. You are not audible, Karthike. There is some problem. Anunay Nandgirwar. Good morning. Anunay. 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 Arno Pinge. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Parag, good morning. Good morning, sir. Anushka Dude, good morning. Good morning, sir. Anunay, Morning, sir. good morning, beta. Okay, so welcome back to all of you in social science subject live class for standard 9. Okay, so without wasting any time, let us continue the section which we have left in yesterday's live class. Okay, just wait for a minute. So we were discussing on this section of chapter, okay, why do we need a constitution? Okay, so ये वाला section हम लोग discuss कर रहे थे, ठीक है? And what I remember, we have completed this particular line. ये वाली line यहाँ तक का हमने complete कर दिया था शायद. Okay, Constitution is the supreme law that determines, okay, Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory, that is the citizen of the country, and also the relationship between the people and government. यहाँ तक का सेक्शन क्या हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था? Yes, sir. ओके, ठीक है. Yes, So let us continue from this section. yes, sir. So a constitution does many things. A constitution does many things मतलब what the people of the country get, what the people of the country will achieve if they have a constitution. यदि किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है तो लोगों को उससे क्या लाभ है, क्या प्राप्ति हो रही है, what are they getting if the country has a constitution. यहाँ तक बात आई समझ में चैतन्य पचभाई? Yes, sir. Good. Okay. So, what are the purposes? What are the benefits of the Constitution? So, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. Now, क्या लिखा है? It generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. इसका मतलब देश में यदि कॉन्स्टिट्यूशन है तो देश के लोग उस देश में बड़े बेफिक्री से अपने अधिकारों की चिंता किए बिना, ठीक है, सुरक्षित रूप से रहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए उस देश में रहने के लिए उनके मन में क्या होता है, एक विश्वास पैदा होता है. जैसे हम बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान में हमारा
कोई कुछ उल्टा सीधा बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि इंडिया में किसका लॉ है? कानून का शासन है। किसका रूल है? कानून का रूल है ना। तो इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ यानी हमारा देश किसके हिसाब से चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। So India has a constitution and the country runs according to the constitution. यह विश्वास, ये भरोसा हिंदुस्तान के लोगों के दिलो दिमाग में है, ठीक है। तो जब किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन उस देश के लोगों के मन में क्या? डिग्री ऑफ ट्रस्ट, एक विश्वास पैदा करता है, और उस विश्वास के कारण लोगों के बीच में क्या डेवलप होगा? कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, it specifies how the government will be constituted, who will have power to take the decision. Specify मतलब बिल्कुल क्लियर कट लिखा है, बिना किसी शको शुभा के प्रॉपर प्रोसीजर लिखी है। So it specify, यानी कॉन्स्टिट्यूशन यह बताता है कि हाँ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, who will have power to take which decision, ठीक है। गवर्नमेंट में, स्टेट में किस ऑर्गन के पास कौन सी डिसीजन मेकिंग पावर है, ठीक है। तो हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, किसके पास कौन सा डिसीजन लेने की पावर है, ठीक है। ये किसमें लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर है, जुडिशरी के पास क्या पावर है, लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या पावर है, आर्मी के कमांडर के पास क्या पावर है। So everything is written in the constitution. यानी किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन यदि है तो वो क्या करता है? उस कंट्री के एंटायर सेटअप को डिसाइड करता है। ये बेनिफिट है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। देन थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? गवर्नमेंट की पावर पर, सरकार की ताकत पर, सरकार पर कंट्रोल भी करता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन दोनों तरीके से काम करेगा, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में भी मदद करेगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम भी किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ तक बात आई समझ में? संध्या? Yes, sir. ठीक है ना। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार क्या काम कर सकती है, गवर्नमेंट के पास क्या डिसीजन मेकिंग पावर है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के जो नियम हैं वो भी किसमें लिखे हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। सो द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पावर पर लिमिटेशन लगाने का काम किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड इट टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर, और सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं वो भी किसमें लिखे हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। देन व्हाट इज द नेक्स्ट पर्पस? इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। नाउ क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी मतलब हिंदुस्तान किस प्रकार का देश बनेगा, इंडिया किस प्रकार का देश बनेगा, ये किसमें लिखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज बने हैं, जो कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बने हैं,
उन कानूनों में जो भी चेंजेस होते हैं और उनके हिसाब से हमारी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन रन होता है। तो वो सारे नियम, कानून, कायदे किसमें लिखे हुए हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे, है ना। तो ये सारे कानून कायदे के हिसाब से क्या चल रही है? कंट्री चल रही है। परंतु ये लॉज किसने एक्सेप्ट किए? These laws, these rules are accepted by the people of the country. ठीक है, इन्हें हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ये बताता है कि लोग किस प्रकार के लॉ चाहते हैं, लोगों को कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अपना जीवन जीना पसंद है। यहां तक बात आई समझ में? यस संध्या? Yes, sir. हाँ ठीक। यस, मैं बीच बीच में इसलिए पूछता हूँ so that I would be able to ensure that there is no logout accidentally. ठीक है, चलिए। So these are the 4 purposes. These are the 4 purposes solved if the country has a constitution. यदि किसी देश में, यदि किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है तो उससे इतने पर्पसेस क्या होते हैं? सॉल्व होते हैं। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. चलिए तो आगे बढ़ते हैं। All countries that have constitution are not necessarily democratic. ठीक है, वो सारी कंट्रीज जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कंट्रीज डेमोक्रेटिक हो। मतलब कुछ कंट्रीज को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, परंतु उन कंट्रीज में भी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फर्क इतना है कि उस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रखता है, परंतु उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में से कुछ रूल्स और रेगुलेशंस किसके हिसाब से फिट नहीं होते? डेमोक्रेसी के हिसाब से फिट नहीं होते। इसलिए हम उन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या नहीं कहते? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। ठीक है, so all countries that have constitution are not necessarily democratic. वो डेमोक्रेटिक हो ये जरूरी नहीं, but all countries that are democratic, परंतु वो सारी कंट्रीज जो कैसी कंट्री हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री है। All countries that are democratic will have constitution. वो सारी कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक हैं उनमें निश्चित रूप से क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके, सो आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिकन गेव देमसेल्फ ए कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जब अमेरिका ने ग्रेट ब्रिटेन से आजादी प्राप्त करी, they framed the constitution for themselves. Likewise, after the revolution, the French people made the democratic constitution. Since then, it has become a practice in all democracies to have a written constitution. उसके बाद से ही लगभग सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में एक नियम बन गया कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होंगी, सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। यहां तक बात आई समझ में? गौरव, गौरव टिकट, सार्थक वाघमारे, यहां तक आया समझ में?
सार्थक वाघमरे, यहां तक आया समझ में? दिव्यांका जंगेल, दिव्यांका, यस सर। बेटा इतना टाइम क्यों लगता है? सर मैं कंप्यूटर में कर रही थी ना आज, तो फिर कंप्यूटर में वो सिस्टम नहीं है आवाज माइक्रोफोन का। ओके ठीक है। श्रुति शर्मा, गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग सर। ठीक है, चलिए। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट एंड द मेन बॉडी ऑफ अवर चैप्टर, है ना? ये जो है हमारे चैप्टर का मेन बॉडी है। मेन बॉडी बोले तो मेन पोर्शन, है ना? अभी जो दो सेक्शन हमने पढ़े 2.1 और 2.2 वो भी इंपॉर्टेंट है, परंतु पूरा चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका मुख्य मेन हिस्सा कौन सा है? ये वाला, द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां तक बात आई समझ में? पूजा विधाते, Yes, sir. पूजा विधाते, पूजा गुड मॉर्निंग बेटा। ओके ठीक है, चलिए। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सेक्शन। व्हाट इज इट? मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? तो अभी छोटा सा पोर्शन हमने सेक्शन 2.1 में किसके बारे में डिस्कस किया था? वी डिस्कस इट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना? हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। छोटा सा पोर्शन था, क्योंकि वो हमारे चैप्टर का मेन बॉडी नहीं है। हम मेनली इस चैप्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सेक्शन। लाइक साउथ अफ्रीका, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances, है ना? जिन मुश्किल परिस्थितियों में, टसल वाली कंडीशन में साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उन्हीं कंडीशंस में कहां पर? इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए huge and diverse country like India was not an easy affair, ठीक है? इतने बड़े कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई आसान बात नहीं थी। At that time, the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizen। ये वो समय था जब आजादी के बाद में हिंदुस्तान के लोग इंडियन सिटीजन, ठीक है, एक मोनार्कियल रूल के कब्जे से निकल करके इसमें सिटीजनशिप यानी एक डेमोक्रेटिक रूल में एंट्री कर रहे थे, ठीक? उस समय पर इंडिया की कंडीशंस बहुत ज्यादा डाइवर्स के बीच में we have to make a constitution for our country। तो वो जो प्रॉब्लम्स, वो जो समस्याएं हमारे कंट्री ने फेस करी, ठीक है, उन समस्याओं को फेस करते हुए, ठीक है, उन समस्याओं को फेस करने के कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए जो क्या करते हैं? उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है? तो द कंट्री वाज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। हमारा जो कंट्री है ना, बॉर्न मतलब हमारा देश जब आजाद हुआ तो आजादी हमें किसके साथ मिली? देश के विभाजन, पार्टीशन के साथ मिली। दिस वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। यस, सारा लटारे,
Sir, you got disconnected. हाँ, वो मैंने तो इसीलिए मोबाइल ऑन करके रखा है, मैसेज तुरंत पढ़ लिया था, है ना? ठीक है, चलिए, ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर इन्फॉर्मिंग मी. नाउ एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So at least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence, है ना? जो partition related violence थे उसके कारण क्या हुए, दोनों साइड से, दोनों पक्षों से लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग क्या हुए, मारे गए. There was another problem. एक और समस्या थी. समस्या क्या थी? The British had left it to the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or Pakistan or remain independent. ठीक है? The British had left it to the rulers of the princely states. जो princely states थे, उन प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे उनको क्या किया, ब्रिटिशर्स ने आजाद कर दिया. आजाद कर दिया कि आपकी जैसी मर्जी वैसा आप करें, यानी यू कैन आइदर ज्वाइन टू इंडिया और यू कैन ज्वाइन टू पाकिस्तान. ठीक है? द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वाज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क. ठीक है? ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी, इन प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर मतलब मिलाना कैसा था, एक बहुत ही मुश्किल और अनसर्टेन, अनिश्चित टास्क था. ठीक है? ऐसा इसलिए था क्योंकि जब हिंदुस्तान को आजादी दी गई तो इंडिया उस समय 3 पार्ट में बांट दिया गया. जितने हिस्से पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते थे, जितने हिस्से पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूलिंग करते थे, उतने हिस्से को 2 कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया. यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, और sir. बहुत सारा इंडिया का हिस्सा ऐसा था जिस पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल नहीं करते थे, बल्कि क्या होता था, लोकल जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, जो लोकल प्रिंसली स्टेट्स थे वो क्या करते थे, रूल करते थे. ठीक है? अब लोकल प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या हुआ, जो जैसे राजा महाराजा वगैरह थे ना, तो वो राजा महाराजा वगैरह क्या करते थे, इंडिया पर रूल करते थे. यहां तक बात आई समझ में? तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको भी आजाद कर दिया. यानी अब राजा महाराजाओं को ये छूट थी कि वो चाहे तो इंडिया को ज्वाइन करें और चाहे तो वो किसको ज्वाइन करें, पाकिस्तान. तो ये जो कंट्रीज थे, इन कंट्रीज को इंडिया में शामिल करवाना एक बहुत बड़ी समस्या थी. यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. तो इतनी सारी जो समस्याएं थी, है ना, इन समस्याओं के बीच में, इन समस्याओं का सामना करते करते हमने क्या बनाया, अपनी कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. The makers of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. ठीक है? जो हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, जिनने, जिस ग्रुप ने मिलकर के क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनके मन में इन सभी चीजों को लेकर के एंजाइटीज मतलब चिंताएं थी कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन आज बना रहे हैं तो हमारे देश का क्या होगा,
किस तरीके से हमें कानून बनाना है। आज हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जो हमारे कंट्री को हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, समस्याओं से बचा करके रखे। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. है ना? अभी आई एम गोइंग टू शो यू ए स्मॉल वीडियो। एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। जस्ट अ मिनट। One, two, breathe. 3, 4. है और हम इसका इस्तेमाल भी जानते हैं। I call upon all the Muslims of this country to take that. ना इसको बहुत ध्यान से देखना। हाँ, इज ए वीडियो विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Rare and truly a collector's item, which was जस्ट अ मिनट। हाँ, यस, welcome to this very exclusive auction. और ये है लेडीज एंड जेंटलमैन भारत के संविधान की ओरिजिनल कॉपी, उन 1000 कॉपियों में से एक जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स के लिए स्पेशली तैयार किया गया था। A very rare and truly a collector's item, which was meant for those जिन्होंने 3 साल रात दिन एक करके इस किताब को मुकम्मल किया। पेश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ये कोई आम किताब नहीं बल्कि प्रतीक है हमारे मुल्क का। पर कभी सोचा है आपने कि ये मुल्क आखिर होता क्या है? समाज शास्त्री कहते हैं कि एक ही नस्ल, धर्म, जबान, परचम और हुक्म को मानने वाले बाशिंदों के समूह से बनता है एक मुल्क, एक देश। मगर हिंदुस्तान जैसे बहुत सी भाषाओं, धर्मों और तमाम जातियों प्रजातियों वाले सब कॉन्टिनेंट को किसी तंग नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। और ऐसे मुल्क, ऐसे समाज में पुरानी रीतियों को तोड़कर सबको साथ लेकर आगे चलने के लिए किसी पुराने कानून से भी काम नहीं चल सकता है। इसीलिए हमारे पुरखों ने बनाया था हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आईना। ये आईना ही तो वो आईना है जिसमें देख कर ही हम खुद को पहचान पाते हैं। और सवाल, इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको इस जादुई आईने के अंदर के संसार की सैर पर ले जाऊंगी। ये कैसे बना, कब बना, किस किसने बनाया और क्यों बनाया। तो चलिए चलते हैं वहां जहां कहानी शुरू हुई थी हमारे संविधान की। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले आप भी तो ठीक से देख लीजिए उस मुकद्दस किताब को जिसकी बात हम कर रहे हैं। शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार श्री नंदलाल बोस की रहनुमाई में कई कलाकारों ने भारत के इतिहास, पुराण और लोक कथाओं की छवियों से इस ग्रंथ को सजाया था। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जैसे खुशखत कातिबों ने इसे अपनी कलम से निखारा। 19
बेटा ये कौन समझदार है जिसने अपना प्रतिश्रुता स्विच ऑफ द माइक। मगर ये काम मुश्किल होते हुए बहुत आसान था उस काम के मुकाबले जो इस संविधान की कल्पना कर इसे लिखित रूप देने वालों ने संविधान सभा में पूरे 3 साल लगाकर किया था। क्योंकि वह कल्पना केवल एक किताब की नहीं थी, वह तस्वुर था एक नए मुल्क का, एक नए समाज का, एक ऐसी नई संस्कृति का जो इससे पहले इस संसार में कभी देखी नहीं गई थी। दिसंबर 1946 में जिस इमारत की तामीर शुरू की गई थी, असल में उसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। 1857 की क्रांति के दौरान बागी सिपाहियों ने भी हिंदुस्तान का एक अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी। उनका विद्रोह तो जल्दी ही दबा दिया गया, मगर आजाद देश का एक अपना आईन बनाने का सपना न दबा था न हारा था। और जैसे जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की आवाज तेज हुई, तो अपना संविधान बनाने की मांग भी और तीव्र होती गई। My mentor, Gopal Krishna Gokhale, presented to the British government a note on the Constitution in 1914. And the British said, yes, we will accept it after the war. But now they want to make a constitution for us. But you know, a constitution for India should be and can be framed only by Indians. Now it works. What will you do with the spinning wheel, Mr. Gandhi? This is my secret weapon to drive the English rulers away so that we will have the power to make our own constitution. अब गांधी जी की सरपरस्ती में इतिहास ने दोबारा हमें एक नए भारत को गढ़ने का मौका दिया था। कांग्रेस नेता और आला वकील पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की जिसे नेहरू रिपोर्ट या स्वराज संविधान के नाम से भी। बेटा ये जो अभी नेहरू रिपोर्ट की बात करी है ना इन्होंने, Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये जो पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, तो ये सारी चीजें भी हमें आगे इस चैप्टर में आने वाली है। ठीक है, गॉट इट? Okay, sir. हाँ, की जाना गया और उनके बाद जब उनका बेटा जवाहर कांग्रेस का सदर बना, तो उस युवा नेता ने हिंदुस्तान के अपने संविधान के सपने को और शदीद तरह से सबके सामने रखा। आजादी दी नहीं जाती, स्वतंत्रता किसी कानून के नुक्ते को बदलकर नहीं मिला करती। इस तरह तो नए निजाम के नाम पर अंग्रेजों की पुरानी गुलामी को और मजबूत किया जाएगा। सच्ची आजादी तब मिलेगी जब हम अपनी चुनी हुई संविधान सभा के जरिए खुद अपने देश का संविधान सोचेंगे, अपना आईन तय करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जवाब में अंग्रेजों ने सन 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। यह एक्ट भारतीयों की उम्मीदों से न सिर्फ बहुत कम और अलग था, बल्कि इसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान दूरियां और बढ़ने लगी। इस बीच दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1945 में डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू ने सभी पार्टियों से मशवरा करके एक साझे संविधान का खाका बनाने की कोशिश की। इधर वर्ल्ड वॉर 2 की मार और इधर आजाद हिंद फौज और भारत छोड़ो आंदोलन के चलते अंग्रेजों का भारत पर अनंत काल तक राज करने का इरादा नेस्तनाबूद हो चुका था। विंस्टन चर्चिल युद्ध तो जीते, मगर बेचारे चुनाव हार गए और बर्तानिया के नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा कि भारत के लिए नया संविधान बनाने
और मुसलमानों को अलग अधिकार देने की मुस्लिम लीग की मांग पर काम फौरन शुरू किया जाएगा। इसी के मद्देनजर पहली बार हिज मैजेस्टी की सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री एक साथ भारत भेजे गए और ये कहलाया कैबिनेट मिशन। Believe me, India will be a much better place after you have left us to ourselves. That's precisely what we need to do, Mr. Khan. Our only fear is where it's possible to minimize the violence and the bloodshed which is predicted in the subcontinent when it breaks into Hindustan, Pakistan and Pakistan. Then don't break India. But what about Mr. Jinnah's Pakistan? Why will you listen to my brother Jinnah if you are not ready to listen to others? And why do you presume that Jinnah will not see sense when he makes an incident? I do wish our hopes come true when we meet in Simla, but it is important that you're also present there. What will I do there? I'm neither a member of the Congress nor of the Muslim League or of the other outfits that you have invited. But still, we will need your wise counsel in Simla when discussions are held about an interim government and a new constitution for India. लाट साहब यानी वाइस रॉय की शिमला कोठी में बैठक लग रही थी और वहां भारत भर की अहम सियासी हस्तियां जमा हो रही थी। कांग्रेस की तरफ से आए थे उनके अध्यक्ष मौलाना आजाद, साथ में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और खान अब्दुल गफ्फार खान। मुस्लिम लीग की तरफ से थे मिस्टर जिन्ना, जिनके साथ थे लियाकत अली खान, सरदार निश्तर और नवाब इस्माइल खान। सिख, पारसी, ईसाइयों और दलितों के नुमाइंदे भी थे। उधर पूरे मुल्क में फैले सैकड़ों रजवाड़ों की तरफ से वहां मौजूद थे भोपाल के नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह, जो उन दिनों चेंबर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर। Yes. Hello, students. Yes, sir. Yes, sir. We will continue this video in Yes, sir. tomorrow's session. हम इस वीडियो को कल के सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे। द रीजन इज ये एंटायर वीडियो बेसिकली तो 10 एपिसोड्स हैं, परंतु ये फर्स्ट वीडियो है वो हमें बेसिकली ये बताएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो किस प्रकार की कंडीशंस थी, कौन कौन सी बहस किस तरीके से आगे बढ़ी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. I am winding up the session here only. Okay, so that's all for today live class. Thank you. Goodbye. Thank you, sir.